आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज बिदर में कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार के प्रशंसकों ने पुनीत राजकुमार का जन्मदिन मनाया। केक काटा गया और अभिनेता के कटआउट को दूध से नहलाया गया। मुस्लिम संगठनों का आज कर्नाटक बंद। उडुपी व शिमोगा में मुस्लिम छात्राओं ने छोड़ी परीक्षाएं। 5 राज्यों में हार का आकलन करने को सोनिया गांधी ने नियुक्त किए नेता। बदलाव के लिए मांगे सुझाव। कांग्रेस के टुकड़े नहीं चाहते, लेकिन गांधी परिवार के वफादारों को जाना होगा। G23 का सुझाव। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने थाने के सामने ही खुद को लगा ली आग। मचा हड़कंप। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में 45,000 लोगों को न्योता देने की तैयारी। राहुल, सोनिया, अखिलेश को भी दिया जाएगा निमंत्रण। अब समाचार विस्तार से। कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का आज जन्मदिन है। वो दक्षिण भारतीय सिनेमा का जाना माना नाम थे। उनकी एक लंबी फैन फॉलोइंग थी। 17 मार्च को फैंस पुनीत राजकुमार के घर के बाहर इकट्ठा होते थे और उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते थे। साल 2021 में उनके अचानक इस दुनिया से चले जाने के बाद फैंस और सिनेमा जगत को बहुत बड़ा झटका लगा था। पुनीत राजकुमार फिल्मों में तो हीरो थे ही, लेकिन इसके साथ ही वो असल जिंदगी में भी हीरो थे। आज पुनीत राजकुमार के जन्मदिन पर बिदर के पुनीत राजकुमार के प्रशंसकों ने बड़े उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर केक काटा गया और पुनीत राजकुमार के फोटो पर फूल बरसाए गए। इसी तरह आज पुनीत राजकुमार के जन्मदिन के अवसर पर पुनीत राजकुमार की आखिरी फिल्म जेम्स थिएटरों में रिलीज हुई। इस फिल्म को देखने के लिए थिएटरों के टिकट खिड़की पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। इस अवसर पर पुनीत राजकुमार के प्रशंसकों ने बिदर के अंबेडकर सर्कल से ग्रुप के रूप में पुनीत राजकुमार के कटआउट को लेकर थिएटर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने पुनीत राजकुमार के कटआउट को दूध से नहलाया। कन्नड़ अभिनेता के प्रशंसकों ने केपी न्यूज को इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। जेम्स बिಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಟಗರು ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ. ಇಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಪ್ಪು ಏನು 30 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನು ಆಟದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಪು ಬರ್ತಡೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವ್ಯಕ್ತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಫಿಲಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ 100 ಡೇಸ್ ಹೋಗ್ಲಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಅದ. ನಮ್ಮದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದೊಂದು ಅವರು ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಅದ ಸರ್, ಬುಕ್ಕು ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳು ಕೊಡ್ಲತ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತೀವಿ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಕೊಡ್ಲತ್ತೀವಿ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಭೀ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನಮ್ಮೂರು ಇಲ್ಲೇ, ಬಟ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು. ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮೂವೀಸು, ಬೆಟ್ಟದು ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೂವಿ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೈಲು, ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು, ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಅಪ್ಪು ಮೂವಿಯಿಂದನೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಮೂವೀಸು 100 ಡೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ. ಈ ಮೂವಿ ನಮಗೆ 100 ಡೇಸ್ ಓಡುತ್ತೋ ಬಿಡೋದು ಇದು 360 ದಿನ 2 ವರ್ಷ ಓಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಅಪ್ಪು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸದಾ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. 1 ತಿಂಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಫೋರು 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬೀದರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ ಸರ್. ನೀವಂತೂ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ, 30 ಆಟಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಟು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಯಾರು
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी हिजाब विवाद थमता नहीं दिख रहा है। फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने आज कर्नाटक बंद का ऐलान किया है। आज के बंद में शामिल होने के लिए पूरे राज्य व्यापार मंडल को भी निर्देश दिया गया है। वहीं कर्नाटक के तटिया कस्बे उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की 6 मुस्लिम छात्राओं ने बुधवार को भी कक्षाओं का बहिष्कार किया। ये छात्राएं अपने रुख पर कायम है कि वो सिर पर स्कार्फ बांधे बिना कॉलेज नहीं आएंगी और इस पर कानूनी लड़ाई लड़ती रहेंगी। इन छात्राओं के प्रारंभिक परीक्षाएं भी चल रही हैं, लेकिन इन सभी ने परीक्षा भी नहीं दी। अमीर शरीयत कर्नाटक के मौलाना सगीर अहमद खान रशीदी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताते हुए बृहस्पतिवार को प्रदेश बंद का आह्वान किया है। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि मेरा सभी मुस्लिमों से अनुरोध है कि वे इसे ध्यानपूर्वक सुने और इसका सख्ती से पालन करें। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद मतीन खान ने कहा कि हिजाब मुस्लिम संस्कृति का जरूरी हिस्सा है। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये निर्णय उन लोगों को निराश करेगा जो कानून में अभी भी विश्वास रखते हैं। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का यूथ विंग सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगा। वहीं नागरिक एकता पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को न्याय के बजाय सिर्फ एक निर्णय बताया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद मतीन खान ने कहा कि हिजाब मुस्लिम संस्कृति का जरूरी हिस्सा है। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह निर्णय उन लोगों को निराश करेगा जो कानून में अब भी विश्वास करते हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद भगवंत मान एक्शन में आ गए हैं और लगातार एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। अब उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य की जनता के लिए एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। भगवंत मान ने ट्वीट कर बताया कि वो पंजाब की जनता के लिए बड़ा फैसला करने वाले हैं, जिसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। पंजाबी और हिंदी में एक ट्वीट में भगवंत मान ने कहा, पंजाब की जनता के हित में आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। पंजाब के इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा फैसला नहीं लिया होगा। कुछ ही देर में ऐलान करूंगा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लग गई है। पहले सोनिया गांधी की ओर से 5 राज्यों के कांग्रेस प्रमुखों से इस्तीफे देने को कहा गया था, जिसके बाद यूपी में अजय कुमार लल्लू और पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे हुए। अब 5 राज्यों में मिली असफलता का आकलन करने के लिए सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को नियुक्त किया है। ये नेता हार के कारणों का पता लगाएंगे, साथ ही संगठन में बदलाव के लिए विचार भी सुझाएंगे। सोनिया गांधी की ओर से राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को गोवा की स्थिति का आकलन करने को कहा गया है। वहीं जयराम रमेश को मणिपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही अजय माकन को पंजाब का आकलन करने को कहा गया है, जहां कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने हराया है। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार के कारणों का आकलन करने के लिए और चुनाव बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड की जिम्मेदारी अविनाश पांडे को दी गई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष की ओर से नेताओं को नियुक्त करके चुनाव बाद की स्थिति का आकलन करने और उम्मीदवारों और प्रमुख नेताओं से इनपुट लेकर संगठन में बदलाव करने के लिए सुझाव देने को कहा गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद कल रात को कांग्रेस G23 के नेताओं ने एक बैठक की थी। सूत्रों के अनुसार G23 नेताओं ने पार्टी को विभाजित करने से इनकार किया है। बैठक के दौरान फैसला लिया गया है कि वो गांधी परिवार से अपने वफादारों को प्रमुख पदों से हटाने का आह्वान करेंगे। G23 बैठक में ये भी चर्चा की गई कि पार्टी बहुत कमजोर हो गई है और ये विभाजन से नहीं बचेगी। वहीं G23 के नेताओं में से एक गुलाम नबी आज़ाद आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। बैठक में किन बातों पर चर्चा की गई है और G23 के नेताओं के सुझावों को गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी तक पहुंचाएंगे। पहले G23 बैठक का स्थान कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का घर था, लेकिन अंतिम समय में इसे बदल दिया गया क्योंकि कुछ नेताओं ने गांधी परिवार के खिलाफ उनके हालिया बयान को देखते हुए असहज महसूस किया था। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार सिब्बल ने कहा था, मुझे सबकी कांग्रेस चाहिए, कुछ अन्य घर की कांग्रेस चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक शख्स ने बुधवार देर रात थाना परिसर के पास खुद को आग लगा ली। बताया जा रहा है कि स्थानीय SHO वो थाना प्रभारी और गुंडों की मिलीभगत से परेशान होकर युवक ने ये दर्दनाक कदम उठाया है।
खुद को आग लगाने वाले युवक का नाम शिवम गुप्ता है, जो कि एक टैक्सी चालक है। आग में गंभीर रूप से झुलसे शिवम गुप्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मीडिया को दिए एक बयान में पीड़ित ने कहा कि स्थानीय गुंडे उसकी टैक्सी को अपनी मर्जी से जब्त करते थे और स्थानीय पुलिस अधिकारी की मिलीभगत से उससे पैसे वसूल करते थे, जिससे कि वो परेशान था। पीड़ित के अनुसार स्थानीय गुंडे मुझे रास्ते में अपनी कार न चलाने के लिए मजबूर करते थे। वे मेरे साथ मारपीट भी करते थे। पुलिस अधिकारी मासिक रूप से 2500 की रिश्वत लेता था। वहीं थाने के आगे आग लगाने की इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पीड़ित शिवम गुप्ता की ओर से लगाए गए आरोप की जांच के आदेश दिए हैं और क्षेत्र के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के दूसरे दिन भी नवजोत सिंह सिद्धू ने उस आम आदमी पार्टी का समर्थन करना जारी रखा है जिसने उनकी ही पार्टी से राज्य की सत्ता छीन ली है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिन्हें बुधवार को शीर्ष पद की शपथ दिलाई गई, को बधाई देते हुए एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मान ने पंजाब में एक नए माफिया विरोधी युग की शुरुआत की है। सिद्धू ने ट्वीट किया, सबसे खुश आदमी वो है जिससे कोई उम्मीद नहीं करता। भगवंत मान ने पंजाब में उम्मीदों के पहाड़ के साथ एक नए माफिया विरोधी युग की शुरुआत की है। आशा है कि वो इस पर खरे उतरेंगे, जनहितैषी नीतियों के साथ पंजाब को पुनरुद्धार के रास्ते पर वापस लाएंगे। उन्हें शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में वापसी की है। अब योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। कार्यक्रम का आयोजन इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में 45,000 लोगों के शिरकत करने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव
मुलायम सिंह यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत विपक्ष के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। कोयला घोटाला से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पूछताछ का समन भेजा गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय अभिषेक बनर्जी से अगले हफ्ते पूछताछ करेगी। इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय कई बार कोयला घोटाला मामले में टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर चुकी है। वहीं अभिषेक बनर्जी के अलावा उनकी पत्नी रुजिरा को भी एक नया समन भेजा गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कपिल शर्मा और उनका शो आए दिनों किसी न किसी चर्चा का विषय बन ही जाता है। कभी हंसी ठहाके के किस्से सुनाई देते हैं तो कभी विवादों की वजह से हेडलाइंस बन जाते हैं। ठीक इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। द कश्मीर फाइल्स के विवाद के बाद कपिल शर्मा का एक अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। हाल ही में कपिल शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे सुबह के 5 बजे बाइक राइडिंग करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में कपिल शर्मा ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कपिल सुबह के 5 बजे बुलेट चलाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ ही देर पहले इस वीडियो को शेयर किया है और फैंस भी इस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक फैन ने कमेंट करते हुए कहा, उम्मीद नहीं थी कि कपिल इतनी सुबह भी उठते हैं। जब एक्शन एंटरटेनर्स की बात आती है तो निर्माता साजिद नडियाडवाला हमेशा कुछ न कुछ ऐसा लेकर आते हैं जिसको देखने के लिए दर्शकों की उत्सुकता बढ़ जाती है। अब हीरोपंती 2 के साथ पावर प्रोड्यूसर हीरोपंती की ग्लोरी को फिर से दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस बार डबल एक्शन और धमाके के साथ फिल्म में टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी नजर आएगी। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में दर्शकों को एक्शन, रोमांस और मनोरंजन सब कुछ देखने को मिलने वाला है। ये फिल्म इस ईद को 29 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज विदर्भ में कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार के प्रशंसकों ने पुनीत राजकुमार का जन्मदिन मनाया। केक काटा गया और अभिनेता के कटआउट को दूध से नहलाया गया। मुस्लिम संगठनों का आज कर्नाटक बंद। उडुपी व शिमोगा में मुस्लिम छात्राओं ने छोड़ी परीक्षाएं। 5 राज्यों में हार का आकलन करने को सोनिया गांधी ने नियुक्त किए नेता, बदलाव के लिए मांगे सुझाव। कांग्रेस के टुकड़े नहीं चाहते लेकिन गांधी परिवार के वफादारों को जाना होगा, G23 का सुझाव। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने थाने के सामने ही खुद को लगा ली आग, मचा हड़कंप। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में 45,000 लोगों को न्योता देने की तैयारी। राहुल, सोनिया, अखिलेश को भी दिया जाएगा निमंत्रण। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।